crores of rupees was found by the Enforcement Directorate officials from an IAS officer's house in relation to Manrega-related fraud from Jharkhand. The judgment in December 2022, Neeraj Dasta versus the state, in this case, the government of NCT, the Constitution Bench of Supreme Court, consisting of Justice Abdul Nazir, Justice B.R. Gawai, Justice A.S. Bopanna, Justice V. Subramaniam, and Justice B.V. Nagaratna, came down heavily on corruption among civil servants in the country and lowered the bar for quantum of evidence required to convict person charged with corruption. Now, what is this Neeraj Datta judgment? What is the legal framework around the corruption, and why corruption is still prevalent among the civil servants, and how does it affect the country? Hello and good morning. Welcome to another session of AB Discuss with Maddie. And to discuss all these things, we have with us Madhav Patro, the founder of Alpha IAS Academy. Good morning, Madhav. Good morning, Avi. So, Madhav, basically, no need to tell, but then the corruption still prevails in the country. They are like the veins in the body, and the current government has done a lot of things, but then we still see the instances of stacks of crores of rupees being found out in senior officials. It would not be good to name the officials because they are not yet convicted, and we believe that somebody is not guilty until proven. We believe in that proposition of law. Madhav, what was the Neeraj Datta judgment? नीरज दत्ता जजमेंट एक ही था कि वो जजमेंट में ये पहली बार जजमेंट नहीं है, ये बहुत सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत बार बोल चुका है इसके बारे में। जो एंडेमिक करप्शन है वो बहुत बड़ा गवर्नेंस के लिए थ्रेट है। ये जजमेंट में बहुत पहले जजमेंट्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू रेज किया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जजमेंट में यही कहा जा रहा था कि जो हमारी कन्विक्शन रेट है करप्शन का, मतलब बहुत सारे लोग करप्शन से केस फाइल होता है, कुछ मतलब करप्शन एक्सपोज होता है, फिर भी उनका कन्विक्शन नहीं होता है क्योंकि जो लीगल एविडेंस जो हमारी जुडिशरी को चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये जजमेंट का एक ओवरऑल ये था कि जो इन्फ्लुएंस्ड पर्सन्स होते हैं अपना सोसाइटी में, वो कुछ सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और उनको जो करप्शन का जो पनिशमेंट मिलना है वो नहीं मिलता है। इसीलिए करप्शन एक पार्ट ऑफ द सिस्टम बन चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इश्यू को रेज किया है, इसमें कोई नई बात नहीं। एब्सोल्युटली। एंड अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, there was a very dreaded rape case from Uttarakhand. Now, the Supreme Court has to let go the accused, the evidence, because there was lack of evidence. अब lack of evidence क्या था, मैं आपको बताता हूं कि जो एक एविडेंस था, जो कि मोबाइल फोन विक्टिम की डेड बॉडी के पास से मिला था, उसको जो है पुलिस ऑफिसर जो है लिस्ट ऑफ जो एविडेंस होता है उसमें डालना भूल गया था। और क्योंकि उसने बाद में डाला, प्रोसिक्यूशन ने डिफेंस ले लिया कि ये जो है इम्प्लांटेड एविडेंस है, एंड इम्प्लांटेड एविडेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस, एंड thus the court was not able to consider it, and thus the accused was freed. And just for the sake, now law has to be upheld, law is prime, we know that, but then law is for the people. And if it's not able to deliver justice, then we might see justices such as encounters, bulldozer justice. These have come up in face of events where the judiciary has failed to keep up the trust of the people. Now, Madhav, if you could tell us the legal framework around the corruption kya hai? What are the legal frameworks, like acts? What are the punishments? If you could tell us. देखिए, पहले हमें लीगल फ्रेमवर्क से जाने से पहले एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। इस जजमेंट में बोला गया कि देखिए, जब भी आप
जो स्ट्रिंगेंट मतलब ज्यादा मतलब पनिशमेंट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम कहते हैं कि कुछ कुछ कन्विक्टेड पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दीजिए। जी जब ये जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ जाती है ना, तो जुडिशरी के पास मतलब ज्यादा एविडेंस मांगती है वो, क्योंकि उनको पता है कि ये जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जब ज्यादा होगी ना, तो उनको ज्यादा एविडेंस के साथ ही कन्विक्टेड पर्सन को ये कर सकती है, मतलब जस्टिस डिलीवरी कर सकती है। तो एब्सोल्युट ये लीगल फ्रेमवर्क में हमारे देश में ना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में यही बोला गया कि आप कुछ कुछ जैसे करप्शन है, ठीक है, करप्शन बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि हम छोटा स्मॉल माइक्रो प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ा दोगे ना, तो जुडिशरी को फोर्स किया जाता है कि प्रॉपर एविडेंस मिला जाए। तो वो कभी भी देखिए हमारे एविडेंस में तो बहुत प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ये लीगल फ्रेमवर्क का प्रॉब्लम है। जब आप लॉ बनाते हो तो क्वांटम ऑफ द जो पनिशमेंट होती है उसको एक मतलब बैलेंस वे में रखना चाहिए कि मिनिमम एविडेंस के साथ भी पनिश किया जाए। तो ये हमारी लीगल फ्रेमवर्क का बड़ा सा इश्यू है। और एब्सोल्युटली नेक्स्ट, आप जो बोल रहे हो जो एक्ट्स है जो जी इंडिया में बहुत सारे हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड है सेक्शन 169, जी ये भी जो पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली जो ब्राइब लेते हैं उनको पनिश किया जाता है। जी और प्रिवेंटेशन ऑफ द करप्शन एक्ट एक्ट 1998 अभी जो 99 अमेंडमेंट भी रिसेंटली किया है, जी ये जो गिविंग ब्राइब और टेकिंग ब्राइब दोनों टेकिंग को ब्राइब पनिश किया जाता है। बोथ आर ऑफेंसेस इन और इंडिया एब्सोल्युटली हाँ जी, हमारे जो लोकपाल और लोकायुक्त है जो एक्ट 2013 के अंदर बना है, वो अभी रिसेंटली उसको बॉडी भी अपॉइंटेड किए थे 2-3 साल पहले। तो हम्म वो सब लोग डील करते हैं। हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो हम्म स्पेशली जो करप्शन डील करने के लिए है। जी तो ये हमारी लीगल फ्रेमवर्क और लॉस तो बहुत है, लेकिन हम्म प्रॉब्लम यही है कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है और उसका लीगल फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम है। okay Madhav, like if you could like shed light on some of the instances of corruption among the civil servants. देखिए अभी कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में भी एक केस हुआ था। जी पब्लिक सर्वेंट का नाम लेना सही नहीं होता है, लेडी जी हो, जी क्योंकि लेना सही नहीं होता है, लेकिन जी उनमें भी यही प्रॉब्लम था कि जी उनको जैसे करप्शन में बेस में उनको अरेस्ट किया था, जी लेकिन फिर भी कुछ साल के बाद ये पता चला कि उनकी जो क्वांटम ऑफ जो पनिशमेंट थी, वो जी उनकी जो करप्शन मतलब एलिगेशंस है वो जी एविडेंस नहीं मिल पा रहा। तो एब्सोल्यूट जुडिशरी को कोई यही नहीं था कि वो कन्विक्टेड मतलब कन्विक्टेड वो करप्शन किया हुआ सबको पता था, लेकिन फिर भी जुडिशरी के पास कोई ये नहीं था कि प्रॉपर एविडेंस नहीं था, तो उनको छोड़ना पड़ा। तो ये बहुत सारी दिक्कत होती हैं। और सेकंड ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे देख लीजिए आप जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अभी भी हमारी जो एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स है, जी जो उनकी रिपोर्ट क्लियरली कहा जाता है कि हमारी जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है एब्सोल्यूट तो ये जो उसमें मोस्ट ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन में ले लोगे ना, हम्म करप्शन ही है। हम्म करप्शन एक मतलब 80% ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन चार्जेस जो पॉलिटिशियंस है वो करप्शन रिलेटेड चार्जेस है उनका। एब्सोल्यूट मैं तो अगर ये आपको क्लियरली है, एक इंस्टेंस सिस्टम का बताऊं, प्रॉब्लम है। इनफैक्ट कल हाँ ही जी। यूके पीसीएस ने एक पेपर होता है उनका लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी एंड लेखपाल्स. नाउ दैट पेपर गॉट लीक्ड. नाउ thousands lakhs of people came up, gave that exam. Now that exam will be reconducted in Feb again. That's a waste of resources. That's a waste of time. And we also were aspirants. And we always हम पीसीएस इसलिए नहीं देते थे क्योंकि हमें डर लगता था कि उसका रिजल्ट कब आएगा. It's time that पीसीएस also
the public service commission, state public service commissions also take a cue from the union public service commission on to how to conduct exam. नाउ यूपीएससी जो है आप सीडीएस करवाता है, एनडीए करवाता है, सीएपीएफ करवाता है, वेरियस अदर एग्जाम्स करवाता है, सिविल सर्विसेज कराता है, बट नेवर वी हैव seen or heard of any paper getting leaked. But then when it comes to state public service commission, paper gets leaked. Pathetic state of affairs just because of corruption, and the coaching mafias are involved in it. People, coaching institutes, give huge amounts of money just to get selected, their students, and एक रेस सी रहती है कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में. दैट्स व्हाई अल्फा आईएएस इज नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट विल बी ऑलवेज एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू कैन स्टडी. एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, मतलब व्हाई corruption is still prevalent among the civil servants. देखिए, करप्शन हमारी सोसाइटी में क्यों प्रेवलेंट है, आप जानने के लिए हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा. कैसे हमारी कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है ना, वो हिस्ट्री ऑफ अनरेस्पॉन्सिव अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब पावर कम्स विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये हम ब्रिटिश कॉलोनियल रेजिम देख लीजिए, उनके पहले भी रेजिम ले लीजिए आप कोई भी, तो उसमें एक ही प्रॉब्लम था कि उनकी कोई सिटीजन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. और आप जो फेडरलिज्म ले लीजिए, उधर उस टाइम पे कोई भी जागीर सिस्टम ले लीजिए, जमींदार सिस्टम ले लीजिए, ये सब एक लीगलाइज्ड करप्शन मेथड था. ये लीगलाइज्ड करप्शन मेथड्स थे उस टाइम पे. तो वो ही हमारी कल्चर पे ना वो कंटिन्यू होते गया है. और एक रीजन है कि जैसे हमारी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें हम हमेशा कितना लाते हैं कि रैंक हमारे 80-85 के अंदर ही रैंक रहती है, और उसमें 100 जो लाता है वो टॉप होता है. उसमें सब जो अच्छे जो करप्शन फ्री कंट्रीज होते हैं उसका स्कोर होता है 85-80 ऐसा होता है, जैसे न्यूजीलैंड का, डेनमार्क का, सिंगापुर का. लेकिन हमारी जो करप्शन का जो स्कोर होता है 40 होता है, मतलब पास मार्क ही होता है. तो ये भी कहना गलत है कि कल्चरल हिस्टोरिकल फैक्टर्स ही हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. क्योंकि देख लीजिए, सिंगापुर भी एक यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के हिस्ट्री लेके आता है ना, फिर भी उन्होंने वो हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर दिया, भाई वो हमें नहीं चाहिए, हम आगे बढ़ना है. लेकिन इंडिया क्या होता है कि वो कॉलोनियल हैंगओवर के सफरिंग कंटिन्यू कर रही है. मुझे एक रीजन है. हाँ जी, मुझे लगता है कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो अभी हम बात ही कर रहे थे, वो भी कॉलोनियल इंस्पायर्ड है. आप देखिए आईपीसी, एविडेंस एक्ट, चलो सीपीसी तो नया है, बट देन सीआरपीसी देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये सब कॉलोनियल एरा के लॉज हैं. आज भी हम, मेरे को लगता है ये जो लीगल फ्रेमवर्क है, यही एक माइंडसेट क्रिएट कर देता है. ठीक है, इट्स टाइम दैट वी शुड हैव आवर ओन एथोस into the law. The Indian ethos are very different from the British ethos and the US ethos. I'm not saying that they are bad, they are good, they are above. It's not like that. We all are equal, but then the Indian philosophy should be imbibed into the law as to make law friendly with the people, and people should be inspired to work within the confines of law. They should not be misusing the law. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौशिक बासु, जो आप पता है नोटेड पर्सन है वो, तो उन्होंने एक अच्छी वर्ड पॉइंट किया था, संस्कृताइजेशन ऑफ द करप्शन. तो इनका यही बोलना था कि जो हमारी करप्शन जो है ना, हमारे लिए मतलब हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ द कल्चर भी बन रहा है कि करप्शन. मतलब देखिए हम कुछ लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को हेल करते हैं, पता है हमें वो करप्शन से कन्विक्टेड है और करप्शन से उनका करप्शन कैसे चल रहा है, फिर भी पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है. टॉलरेट करना अलग है, लेकिन उनको स्टेटस देना ये बहुत बड़ी डेंजर है. अभी रिसेंटली हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने भी जो इंडियन सिविल सर्विस इवेंट में उन्होंने कहा था कि करप्शन ठीक है चलेगा, लेकिन मतलब करप्शन करना अलग बात है, लेकिन उसको
ग्लोरीफाई करना ये बहुत बड़ा डेंजर है। तो That that's मतलब nexus between offenders and victims has become the part of ethos. ये बहुत बड़ा थ्रेट है सोसाइटी के लिए। और एक रीजन है हमारी करप्शन, ये इनइक्वालिटी है। क्योंकि जब इनइक्वालिटी होती है ना, देखिए रिच पर्सन को 10,000 ब्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। वही जो इंडिया में फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमारी इतनी इनइक्वालिटी है, जो टॉप 10% 20% ले लोगे, उनको 10,000 देके काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते हैं कि ठीक है, ये पार्ट ऑफ द सिस्टम है। काम होना लेकिन चाहिए। वही, हाँ, वही 10,000 जो लोअर स्ट्रेटा का, जो लोअर क्लास का पर्सन ले लोगे आप, उसकी मंथली इनकम होती है। तो Absolutely. ये हमारी प्रॉब्लम है। ये कोई नया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराना प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली, मेरे को लगता है दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल कि करप्शन में भी, करप्शन भी इंस्टीट्यूशनलाइज है, करप्शन में संस्कृताइजेशन भी है, और करप्शन में इनइक्वालिटी भी है। तो वी, बट प्रॉब्लम्स वी फाइंड इन सोसाइटी एट लार्ज, दैट इज इन करप्शन आल्सो। सो मतलब ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, यू नो, हाउ वी कैन come up with, eliminate this cancer from our society? देखिए, ये सोसाइटी चेंज करने के लिए हमें दो लेवल पे होना पड़ेगा, जैसे इंस्टीट्यूशन हम्म। लेवल पर और एक सिटीजन लेवल पर। हम्म। कि जब तक सिटीजन्स अवेयरनेस ज्यादा होगा, हम्म। तो ये अभी नया जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी भी एक अच्छी मीडियम है जो करप्शन को रिडक्शन करने के लिए। अभी जो हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब देख रहे हैं, उससे बहुत सारा करप्शन कम हुआ है, ग्राउंड लेवल पे क्लियरली एविडेंट है। तो इसके साथ ये तो टेक्नोलॉजी ये सब तो चलेगा, लेकिन जो नेक्सस है ना, जो पावरफुल एलिमेंट्स इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो नेक्सस को कम करने के लिए हमें एक जुडिशरी, एविडेंस और लीगल फ्रेमवर्क, हम्म। तीनों का कोहेसिवनेस चाहिए, तीनों का कोलैबोरेशन चाहिए, तभी ये होगा। नहीं तो ये कंटिन्यू होते जाएगा, क्योंकि ये हेरिडिटरी पार्ट बन जाएगा हमारी सोसाइटी का। Absolutely. And on that note, we'll conclude. But before going, I would like to say that we also need more motivated, more upright, and more honest young officers. And may you all who are seeing this, who prepares or do not prepare, either you prepare your child like that, or you prepare yourself like that. At the end, truth and honesty will prevail. Believe me, your hard work will prevail. If you do corruption, if you do bad things, you are going nowhere in the life. That is good for short term, but then in long term, it will be a disaster. And on that note, we conclude for the day. Thank you all for watching. Take care. Bye bye. Keep smiling, keep healthy, and we shall see you soon. Thank you, Madhav. थैंक यू अभी।